Okay, मेरा mic mute है. Okay, so let us start the session. Today's session with this topic, that is UDP, User Datagram Protocol. Let me summarize the thing. What we have done. What we have done yesterday. We have done actually the two topic, very simple topic, that is go back and protocol, okay, which are in consultation with the simple protocol and stop and wait protocol. And after that we have go back and protocol and then select to repeat protocol. Okay, so in go back and protocol, what it has to do, it has to go back whenever if something goes wrong, and it has to resend the packet. Whenever there's a question of resending of the packet, then it will go back and it will send n number of packets. Okay, that n number of packets will be decided by SF, that is the first outstanding packet. Okay, so the packet which we have for which we have got the acknowledgement, for those packet we are not going to resend it. For those packet which are sent but acknowledgement not received, so we are going to we are going to resend all the packet. Even the problem is not from those packet, but still will resend those packet. So it was a scenario in the go back and protocol. And in the select to repeat, we have just gone through the simple diagram. With the help of a simple diagram, in that our sending and receiving window are having the same size. There is no restriction like only one capacity, buffer capacity to buffer capacity, not like that. Okay, in select to repeat protocol, okay, only the selected packets will be resent, not all the packet will be resent. Okay, as we have seen in the previous one, that is go back and protocol, it resend all the packet for which the acknowledgement has not received. It will set, even there is not a single problem in that particular packet for which we are resending, for which we are processing the resend process. Okay, so but still we will resend all those packets, so that is useless, I think so. So for that, for the resolution of this particular thing, there is a selective repeat protocol which actually said only the selected packet. There is some mechanism, but actually we don't have quite deep. We don't have the concept in quite deep. So we have just gone through the diagram, that diagram I showed you. And only selected packet will be resent. That's all for the selective repeat protocol. Okay. Okay, then starting with the UDP. Now we are going to focus on UDP and TCP, and then we'll see the different services, specific services for UDP and TCP, and then we'll try to understand how they transfer the data. That's all. These two things we are going to cover. I think maybe today and tomorrow in two sessions that will cover these points. Okay, and then we'll try to cover up the last chapter, that is application layer wala. In that we have a lot of protocols which are working, and those questions are asked in the question number 6. Okay, I told you in the beginning only. Okay, so first let us start with the UDP, that is user datagram protocol. Okay, again this is a very common thing, and I think I know we are coming from the, our journey is too long. I think this is 40 42 45 45 lectures have been completed. We have completed around 45 lectures. Okay, so out of these 45 lectures we have gone through many things. Okay, we have gone through about the connection oriented connectionless protocol. We have gone through about this TCP UDP कैसे ट्रांसफर, ये सोर्स सेंडर. सो काफ़ी सारी चीज़ें we have already seen regarding this. Okay, so whatever we are going to learn now, that is UDP and TCP, their services, their how they're transferring. So we will understand that कि हाँ सर, we have already done this, we have already done this. Okay, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है. So काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी. Okay, let us start with the UDP first. Okay, so these are the objective in order to introduce UDP and show its relationship to other protocols. Basically, we don't actually go through all these things, but objective book में था तो मैंने इसको copy paste कर रहा हूँ, so that you must have these objective in your mind, that behind this topic, that is UDP, this is the objective. So in order to introduce a UDP and show its relationship to other protocols in the TCP/IP protocol suite, and to explain the format of UDP packet also, which is called the user datagram. Okay, I told you in the beginning that whenever we talk in terms of the UDP, that is user datagram protocol. Okay, we have two protocol, TCP and UDP. So when we talk about the TCP, so we always call it as a packet.
okay, and that the transfer of those packet is nothing but the stream oriented packet, sorry, stream oriented stream oriented transmission in the case of TCP. But in UDP, these are the datagrams, okay, वहाँ पर पैकेट बोलते हैं, यहाँ पर डेटाग्राम बोलते हैं, तो दोनों के थोड़ा सा नाम अलग अलग है, which is also called as a user datagram, okay. Okay, and we'll also see the services which is being provided by the UDP, that is user datagram protocol. So as you can see the position of this UDP, as we know that these are the transport layer protocol. मेरे तो इसमें तो कोई दो राहें है नहीं, okay, because our TCP UDP, these are the two protocols which works on the transport layer, and we have one more protocol which we don't have actually this protocol in the syllabus, but still I will tell you in the brief, that is the SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SCTP एक और प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, बट बेसिकली इसका हमारे पास में कुछ है नहीं, सो विल फोकस ऑन दिस टू ओनली, दैट इज TCP एंड UDP. सो दिस इज द बेसिकली पोजीशन एट द ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP के साथ में, बिकॉज TCP UDP दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, करण अर्जुन जैसे वैसे. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर UDP. फिर हम लोग ने तो देखो तारीफ हम लोग ने TCP की ज़्यादा करते हैं, UDP की बहुत कम तारीफ करते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि आपका जो UDP है दैट इज़ नॉट अ रिलायबल प्रोटोकॉल, ठीक है. हमने बताया ना, मैंने एग्जांपल लेके, एक कंपनी का मालिक है, उसके 2 ट्रक है, लॉरीज है, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस व्हीकल दे यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, जैसे कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस है या फिर कुछ ऐसे ही मतलब सर्विस है. तो ये जो आपका TCP वाला है बहुत ही अच्छा है, का मतलब फ़ोन करके बताएगा कि हाँ आपका माल सही सलामत सुरक्षित पहुंच गया. UDP वाला केयर नहीं करता है, कुछ पैकेट अगर गिरे तो आपका TCP वाला उन पैकेट को जाके उठाएगा, बराबर रखेगा, पहुंचाएगा. आपका UDP डज नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके. तो ऐसा कुछ मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था, थोड़ा सा और डीप में लेके चलते हैं, ठीक है. सो वी हैव दिस डायग्राम, वी डोंट हैव दिस डायग्राम एक्चुअली. So basically जो डायग्राम हमारा पहले वाला था, हाँ ये वाला, तो दिस इज द इट शोज द पोजीशन ऑफ द UDP, दैट इज UDP प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की पोजीशन बताता है हमको ये डायग्राम इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. In this diagram it shows the relationship of the UDP to other protocols, where it is actually situated. UDP is located between the application layer and the IP लेयर, बीच में ऊपर नीचे 2 लेयर है. अच्छा, मैंने आपको बताया था हम लोगों ने खाली OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ा है, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने बाद में उसके TCP/IP रेफरेंस मॉडल भी देखा होगा. अगर नहीं भी देखा होगा तो कोई इतना वो नहीं, बिकॉज देयर इज सम करेक्शन वी कैन से. आपका OSI रेफरेंस मॉडल it has almost 7 layers, okay, starting from physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. ये हमारे पूरे layers हैं OSI रेफरेंस मॉडल की. तो उसके बाद में फिर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में उसके बाद में एक और मॉडल है, आप लोगों ने काफ़ी जगह बुक में पढ़ा भी होगा, नहीं हो तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं. वी हैव वन मोर मॉडल जिसका नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, और ये TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है, उसको सूट बोलते हैं. सो उसमें कुछ लेयर्स को मर्ज किया गया है, कुछ 2 लेयर को मर्ज किया, तो उसमें हम लोग को टोटल 4 या 5 लेयर्स मिलती है, ठीक है. आप उसका डायग्राम देख सकते हैं बुक में बाद में जाके, आई थिंक ये वाला डायग्राम भी उसी का है. तो इसके अंदर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन दोनों को एक बनाया, फिर बाद में नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, बाद में एप्लीकेशन लेयर, ऐसे 3, इसमें 4 या 5 ऐसे कुछ लेयर्स होती है आपके TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में. सो वेयर योर UDP इज लोकेटेड, इसने ये बताया है, and serve as the intermediary between the application layer and the network operations. Transport layer protocol usually has several responsibilities also, which we call it as a services provided by the UDP, that is user datagram protocol. And as this is on the transport layer, so and it provide the process to process communication, this is the biggest advantage of this UDP. अच्छा, ये एडवांटेज खाली UDP का नहीं है, ये वाला एडवांटेज आपके UDP को भी मिलेगा एंड ये वाला एडवांटेज आपके TCP को भी मिलेगा. दिस इज द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज द बेस मॉडल एंड दिस इज द बेस थिंग विच आर TCP एंड UDP डज, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. अगर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अगर प्रोवाइड नहीं करे तो फिर हमारे ये इन प्रोटोकॉल्स का कोई मतलब ही नहीं आता है, ठीक है. तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर इट प्रोवाइड्स
एंड these two protocol reside on the transport layer only. So transport layer की जो properties है वो हमारे TCP UDP में आएगी. Okay, so our TCP and UDP also provide process to process communication. Okay, it means it takes the data or information from one process of one computer and it delivers the data or information to another computer का process. Okay, so process to process communication, it complete the process to process delivery. And in order to provide that particular data information or packet or user datagram, okay, datagram, in order to reach that particular process, because in particular computer we are having number of processes which are running at the same time. Okay, so what it has to do, it has to deliver a packet, it has to deliver a datagram, sorry, it has to deliver a datagram to a correct process. Okay, to a correct process, because number of processes are working at that time. Okay, your Mozilla Firefox is working on that time, your your Google Chrome is working at that time, your Wireshark is working at that time. So to which process your packet will be delivered, your datagram will be delivered, sorry again, so your datagram will be delivered to which process, we don't know. So for that, what we required port number. Okay, you remember the concept of the port number in the beginning only. Okay, so with the help of the port number, your datagram will reach to the correct process. Okay, तो करेक्ट प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमको क्या लगेगा, पोर्ट नंबर लगेगा. ठीक है, एंड दैट पोर्ट नंबर और लॉजिकल एड्रेस बिकम्स योर सॉकेट एड्रेस. ओके, दैट इज यूज्ड एट दिस पर्टिकुलर layer. Another responsibility is to provide control mechanism at the transport layer. UDP does this. छोड़ो इसे. Controlling mechanism. There is no flow control mechanism. तो भाई flow control mechanism we don't have in the UDP. Okay, transport layer पे सारे बेटे एक माँ के दोनों बेटे ऐसा मतलब सेम नहीं रहते, कोई अच्छा रहता है, कोई थोड़ा ऐसा रहता है. So जो हमारा UDP, we are talking about the UDP, that is user datagram protocol. Okay, so whatever characteristics you are finding over here in the UDP does not match with the TCP also. TCP में हो सकता है थोड़े कुछ अच्छी बात भी हो. So there is no flow control mechanism and there is no acknowledgement for the received packet. Two things you need to make in mind, that there is no flow control mechanism. तो भाई ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस UDP is not going to take care of all these things. Okay, and there is no acknowledgement also for the packet which are for the datagram which are already sent. You are not going to receive any acknowledgement from the receiver side if you are using this kind of services like UDP. Okay, हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, बट बुराई कर करके फिर उसकी कुछ अच्छाई भी हमको मिलेंगी बाद में. UDP however does not provide error control. It provide error control but up to some extent. कुछ थोड़ा आपको error control provide करता है. क्या provide करता है error control? कुछ नहीं, चेक करेगा एरर है, साइलेंटली क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा. सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है, एरर है डिस्कार्ड करो. कम से कम ये काम तो किया कि एरर डिटेक्ट करके दिया आपको. अगर वही चीज़ अगर आपके आगे पर्क्यूलेट हो जाती, अगर same thing is to be percolated on the next layer, then what will happen, your data with particular plus your error, that becomes some strange kind of data and that will be percolated to the upper layer. So that we won't happen, that we don't want to be happen. Okay, so at least ये काम तो हमारा UDP कर लेता है कि एटलीस्ट एरर डिटेक्ट कर लेता है. करेक्ट मत कर भाई, लेकिन कम से कम डिटेक्ट कर ले, तो डिटेक्ट करके बता देगा भाई इसमें एरर है, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, डिस्कार्डेड, इतना काम किया. सो देयर इज नो फ्लो कंट्रोल but an error control is also provided up to some extent only, that is it only detect the error. If it contain the error, it discard it, otherwise it pass it. If UDP detects an error in the received packet, it silently drop the packet. Now biggest question in our mind, sometimes this question is asked, कभी कभार ऐसे वाइवा में पूछ लेते हैं भूले भटके से. If you are having lot of these disadvantages in this particular UDP protocol, then why you are using this particular protocol, that is UDP. ठीक है, तो कुछ ज़्यादा लॉजिकल आंसर नहीं है इसका, बहुत सिंपल आंसर है, that will read. If UDP is so powerless, I have written the right, you can see, if UDP is so powerless, why would a process want to use it? That's a question, can be asked from the examination point of view. With the disadvantages comes some advantages also. क्या है देखते, UDP is a very simple protocol. क्यों सिंपल है, इसके पास ज़्यादा झमेला नहीं है. ठीक है, नो एक्नॉलेजमेंट, सिंपल है,
फ्लो कंट्रोल नहीं है, इन्हें बहुत सारे जो मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ऐड करो, एरर कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ऐड करो, कंजेशन कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ऐड। सो जो जितने मैकेनिज्म अटैच होते जाएंगे तो आपका प्रोटोकॉल बल्कि होता जाएगा, ठीक है। तो वो है नहीं तो प्रोटोकॉल आपका सिंपल है, ठीक है। सो यूडीपी इज अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल यूजिंग मिनिमम ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड कौन कौन से कम है? ना ही फ्लो कंट्रोल है, ना ही एरर कंट्रोल है, ना ही कंजेशन कंट्रोल है, और जितने भी कंट्रोल आते हो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। If a process wants to send a small message and does not care much about the reliability, चुपके से एक छोटा सा मैसेज भेजना है और साइज ज़्यादा नहीं है, सिंपल वाला है, आप बोलेंगे भाई कौन दिखता है रात के अंधेरे में, फ़ौरन भेज देता हूँ ना, कहाँ मेरा पैकेट ड्रॉप होने वाला, ये अगर रिस्क लेके आपको भेजना है तो भेज दो यूडीपी से, सिंपल है, कम टाइम में भी लगेगा, कम टाइम भी लगेगा और फटाफट आपका डेटा सेंड भी हो जाएगा। So sending for it is used for sending a small messages using UDP takes much less interaction between the sender and receiver. आपको पता है यूडी आपका आपके टीसीपी का क्या तामझाम है? टीसीपी पूछेगा सेंडर को भाई है क्या, वो बोलेगा हाँ मैं हूँ, वो बोलेगा ठीक है मैं डेटा भेजूँ क्या, तो वो बोलेगा डेटा भेजो, फिर यहाँ से डेटा भेजेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर आपका डेटा नंबर 2 जाएगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट, ऐसे बहुत सारा कार्यक्रम इनका चलता है टीसीपी का, बट रिलायबल है, यूज आता है in this so much congested world. So you require these mechanism in order to reach your packet at the destination properly, okay, and your data should be correct at this at the receiver side. इस सब के लिए आपने TCP चूज किया, बट अगर आपको थोड़ा सा चला लेने की है तो फिर you can use this one also, that is the for sending small messages, okay, and it can be used in the medium or the channel where the less number of traffic is there, less number of users are there, so at those places you can go through the UDP, ओके तो कम जगह है, ट्रैफिक कम है, तो वहाँ पर आप चला लो तो कोई टेंशन नहीं है, नया ड्राइवर है, कोई इशू नहीं है, ओके यहाँ वहाँ गया तो भी टेंशन है, लेकिन अगर ट्रैफिक वाला रोड है तो वहाँ पर ऑब्वियसली नुकसान तो होगा। So for this is just a simple reason we are referring this UDP, okay, fast है थोड़ा सा because as compared to your TCP, because TCP wait for an acknowledgement for each and every packet, but your UDP does not. It is not a bulky protocol, but your TCP is, okay. It is having minimum overhead, but your TCP is having maximum overhead, okay, because it has a lot of mechanism has been added on that particular protocol, lot of add-on has been added into that particular protocol in order to prevent your data, your packet from the external interference. Okay, come to the user datagram. That is, it is the simple format you can see on the top. That is user UDP user datagram. देख लो कितना है 8 बार, अरे रॉन्ग लिखा है, 8 बाइट्स रॉन्ग है, ये डायग्राम रॉन्ग है, ये आपका जो हेडर है आपका अगर आप दिया है तो चलो कोई बात नहीं है, वो बोल रहा है 8 बाइट्स का, आगे चल के देखते हैं इसको, ठीक है, शायद ये रॉन्ग दिया है। तो योर डेटा पैकेट, योर यूडीपी यूजर डेटाग्राम पैकेट, दैट इज, अब जाहिर बात है मैं पैकेट तो नहीं बोलूंगा, मैं पैकेट बोल रहा हूँ बार बार, बट मुझे पैकेट नहीं बोलना चाहिए, वी मस्ट कॉल इट एज द डेटाग्राम, ओके, इट्स अ यूजर डेटाग्राम, ओके। So this is the user datagram having one section, अब उसकी साइज जितने भी हो बाद में हम लोग कंफर्म करेंगे, उसका जो हेडर होता है उसका डेटा होता है, हेडर में बेसिकली what has to be included in header, there is always a addresses, addresses, checksum है ना, and length वगैरह जो दिख रहे हैं आपको, ये जो हेडर है आपका, यहाँ पर आपका जो हेडर है यहाँ पर, तो हेडर को अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, हेडर का देखो 0 से लेकर 31 तक, सो दिस इज नथिंग बट 32 बिट्स, एक्चुअली 32 बिट्स, तो आपका टोटली 1 बाइट का होना चाहिए, 8 बाइट लिखा इसने, पता नहीं, तो हो सकता है उसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी, आई कांट से कुछ और अबाउट इट, बट ये आपका 32 बिट का है, ठीक है। जो आपका हेडर है यहाँ पर यू कैन सी, जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ पर मेरा रियल कर्सर है और जहाँ पर स्टैटिक कर्सर है, वो आपका हेडर है बेसिकली, योर हेडर यूज टू हैव ऑल द काइंड ऑफ एड्रेसेस, यू कैन सी आपका 16 बिट का पोर्ट नंबर है, 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, दोनों पोर्ट नंबर इसमें एडेड है, इसके अलावा टोटल लेंथ और उसके बाद में चेकसम, तो चेकसम भी तो लगेगा ना भाई,
आपका जो डेटा है उसका चेकसम निकालेंगे, दैट चेकसम की वैल्यू विल बी एडेड इन दैट पर्टिकुलर चेकसम फील्ड। ओके, तो सो दिस इज द हेडर फॉर्मेट बेसिकली ऑफ 32 बिट्स। देखते हैं आगे। UDP packets called user datagram. UDP packets are called as user datagram. Okay, it has a fixed size of 8 byte, header of 8 bytes. यहाँ पर भी बोल रहा है 8 bytes। आगे देखो, सोर्स पोर्ट नंबर कितने बाइट का होता है? सो दिस इज द पोर्ट नंबर यूज बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन द सोर्स होस्ट। ये किसका रहेगा पोर्ट नंबर? सोर्स वाले का पोर्ट नंबर रहेगा, ठीक है। इट हैज अ 16 बिट लॉन्ग। देखो यहाँ पर 16 बिट लॉन्ग बोला है, मतलब ये 16 बिट लॉन्ग है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ होती होंगी, लेकिन यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हो। सो योर सोर्स पोर्ट नंबर इज ऑफ 16 बिट्स। ओके, 16 बिट्स के हिसाब से कितने पोर्ट नंबर आ सकते हैं? लगा लो हिसाब। इट इज ऑफ 16 बिट्स लॉन्ग, सो विच मीन्स दैट द पोर्ट नंबर कैन रेंज फ्रॉम 0 to 65,535। याद है आप लोगों को मैंने बताया था, वी हैव टोटल नंबर ऑफ पोर्ट एज 65,535 number of ports are available, out of which 0 to 1023 number of ports are well known port, from 1024 to XYZ वहाँ तक आपके रजिस्टर्ड पोर्ट, और उसके बाद में वाले आपके डायनामिक पोर्ट, ऐसा कुछ बताया था। उसमें जो स्टार्टिंग वाले रहते हैं आपके 0 से लेकर 1023, दैट इज टोटल नंबर ऑफ 1024 पोर्ट्स आर वेल नोन पोर्ट, जिसको आप बोलते हैं ना, TCP का है, UDP का है, HTTP का है, आपका ऐसा अलग अलग जितने भी प्रोटोकॉल्स है आपके सर्विसेज है उनके पोर्ट हैं। बिकॉज वेन जब भी आपके सिस्टम में कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो प्रोसेस क्या रिक्वेस्ट करता है? एक पोर्ट नंबर रिक्वेस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इंटरनेट जब मैंने आपका ब्राउजर खोला, मैंने मोजिला फायरफॉक्स मैंने ओपन किया, ओके, I want to use the internet, okay, I want to surf internet, so for that reason I have opened Google Chrome और Mozilla Firefox, anything, ठीक है। तो मैंने जब Google Chrome मैंने ओपन किया तो Google Chrome एप्लीकेशन पीछे से एक प्रोसेस मेरा क्रिएट करेगा, ओके, एंड दैट प्रोसेस विल डिमांड फॉर वन सेपरेट पोर्ट नंबर, ठीक है, बिकॉज उसको इंटरनेट एक्सेस करना है, और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसको पोर्ट नंबर एक आध लगेगा, तो पोर्ट नंबर उसको लगेगा। तो द वेल नोन पोर्ट फॉर यूजिंग द इंटरनेट इज दैट इज 80 पोर्ट नंबर, उसको पोर्ट नंबर 80 ऑलवेज असाइन होता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, ऐसे अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग है। देखते हैं, तो सोर्स पोर्ट नंबर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर हेडर। उसके बाद में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट पे जाना है भाई, तो वो पोर्ट नंबर भी मेंशन करो, तो उसके लिए भी एक सेपरेट फील्ड है। देन लेंथ, ये आपका 16 बिट फील्ड दैट डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डेटाग्राम, हेडर प्लस डेटा, हेडर प्लस डेटा, ये पूरा मिला के जितना साइज है तो वो लेंथ इसके अंदर सेव होती है। और उसके बाद में चेकसम है, चेकसम तो आप जानती हो, दैट इज फॉर द एरर डिटेक्शन पर्पस, ओके। तो क्या करेगा, आपका जो डेटा है उसका कैलकुलेशन वगैरह करके एक चेकसम निकालेगा, एंड दैट checksum value will be stored in that particular field. When that particular packet, when this particular datagram will be received by the receiver, तो receiver will also check for that particular checksum, ठीक है। वो भी डेटा रिसीव करेगा, डेटा का checksum निकालेगा, and that particular checksum और सेंडर का भेजा हुआ checksum, it will compare that both the checksum, if it is correct, both are correct, then it will simply accept the packet or accept the datagram, otherwise it will simply discard, okay। इसमें भी error है तो मैं ले नहीं सकता, if it contain the error you have to discard this particular datagram, ठीक है। so the checksum is used for that purpose. These are the well known port used with UDP, okay। तो UDP के साथ यूज होने वाले इतने सारे पोर्ट है, इसमें तो बहुत सारे हम लोग जानते भी नहीं हैं बट यूज होते हैं। इसमें देखो SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल, RPC, TFTP, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, 53 नंबर का पोर्ट है। देन यूजर्स एंड डिस्कार्ड इको, ये बहुत सारे पोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है। दीज आर सम सर्विसेज, ओके। ये आपको याद नहीं रखना है, उसमें एक दो पोर्ट आप लोग एग्जाम्पल के लिए एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो फ्यू पोर्ट नंबर, देयर प्रोटोकॉल नेम एंड देयर डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट एज अ एग्जाम्पल। दीज आर दी UDP सर्विसेज। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा रिवाइज करते करते जा रहे हैं। UDP सर्विसेज है, वन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये बार बार इसके लिए आया है कि आई हैव रेफर 2 बुक्स, ओके। जब पहली बुक रेफर किया था तो उसमें वो ऑलरेडी आ चुका था, जब दूसरी बुक रेफर किया तो फिर वो भी मैंने उसमें मेंशन कर लिया, दैट इज बाय मिस्टेक।
So UDP services I have mentioned now clearly. What are the different services provided by the UDP, that is user datagram protocol? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक के आपको डिलीवरी प्रोवाइड करेगा. देन कनेक्शन लेस सर्विस, कनेक्शन लेस सर्विस इसको हम लोग बोलते हैं. क्यों? बिकॉज ये रिलायबल नहीं है. दिस मीन दैट ईच यूजर डेटाग्राम सेंड बाय द यूडीपी इज एन इंडिपेंडेंट डेटाग्राम. टीसीपी और यूडीपी के अंदर एक फ़र्क ये भी है कि द डेटाग्राम विच आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर यूडीपी सर्विस, इन दिस यूडीपी, द डेटाग्राम विच आर यूज्ड इन दिस यूडीपी आर इंडिपेंडेंट डेटाग्राम्स. ओके, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं आता. There is no relationship between the different user datagram even if they are coming from the same source process. एक ही प्रोसेस से आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपस में कोई लेना देना नहीं, आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं. And even if they are going to the same destination also, same जगह से आ रहे हैं, same जगह जा रहे हैं, but is even they are coming from the same source process and going to the same destination process, they are not having dependency, they are not having any kind of relationship. Okay, the user datagrams are not numbered over here. टीसीपी यूटीपी के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके जो डेटाग्राम्स होते हैं नंबर्ड नहीं होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आगे आती है. एज यू हैव ऑलरेडी सीन के नंबरिंग का क्या फ़ायदा है, सीक्वेंसिंग का क्या फ़ायदा है. There is no connection establishment, there is no connection termination as in the case of TCP. As you know that in TCP we have three stages of transferring the data. First we need to establish the connection, then we need to transfer the data, or we need to communicate whatever we have to do, and then after that last phase is the tear down phase. So the data transmission completes in three different phases. So we don't have any kind of phases in the UDP, that is in the user datagram protocol. And this means that each user datagram can travel on a different path. हर कोई अपनी अपना मनमौजी है, अपनी मर्जी से अपने अलग अलग पाथ भी ले सकता है. यहाँ तक की डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ तक की इंडिपेंडेंसी है. ठीक है. सो ये कुछ सर्विस, एक सर्विस हुई प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, सेकेंड सर्विस हुई कनेक्शन लेस सर्विस. देन रिगार्डिंग फ्लो कंट्रोल, बात तो हो गई थी हमारी कि फ्लो कंट्रोल भाई साहब प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो यूडीपी इज अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल. देयर इज नो फ्लो कंट्रोल, हैंस नो विंडो मैकेनिज्म. आपको पता है विंडो मैकेनिज्म मतलब दे मेंटेन क्यू, a buffer at each, that is the sender side and the receiver side, so that if your receiver is not in the condition to handle the packet, then that packet or datagram will be stored in the buffer. ठीक है भाई, तू वेट कर ले, मैं बिजी हूँ अभी, तू वेट कर ले, जैसे मैं फ्री हुआ तुझे मैं रिसीव कर लूंगा और तुझे मैं प्रोसेस करूंगा. तो देर इज नो फ्लो कंट्रोल, हैंस नो विंडो मैकेनिज्म. जब फ्लो कंट्रोल ही नहीं है तो विंडो मैकेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं आता है. रिसीवर में ओवरफ्लो विद इनकमिंग मैसेज ऑल्सो. एक मैसेज आया, रिसीवर ने रिसीव किया, प्रोसेस कर रहे हैं, तो अभी प्रोसेस करने में ही दूसरा मैसेज आ गया, क्या करेगा, इसको साइड में रखेगा और उसको रिसीव करेगा. जब विंडो मैकेनिज्म ही नहीं है तो उसको रिसीव कैसे कर पाएगा, रिसीव भी नहीं कर पाएगा. जब रिसीव नहीं कर पाएगा तो पैकेट क्या होगा, ड्रॉप होंगे. ठीक है. सो ओवरफ्लो हो जाएगा. द लैक ऑफ फ्लो कंट्रोल मीन्स दैट द प्रोसेस यूजिंग यूडीपी शुड प्रोवाइड फॉर द सर्विस. ओके, should provide for this service if needed. मतलब ये आपका फ्लो कंट्रोल आपको मतलब के मतलब फ्लो मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है. सो वॉट एवर दे आर सेंडिंग, यू हैव टू सेंड इट वेरी केयरफुली सो दैट योर डेटा शुड नॉट बी रिसेंड. एरर कंट्रोल हमने बताया कि भाई प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन करता है, लेकिन बहुत कम करता है. कैसे कम करता है? इट जस्ट प्रोवाइड द एरर डिटेक्शन. ओके, इट जस्ट डिटेक्ट द एरर. If there is an error, which is included in the packet or in the datagram, then it will simply discard the datagram. It will discard the datagram. If it does not contain an error, then it will simply surpass. Okay, इसको simply pass करेगा. The same thing is written over here. And the error detection can be done with the help of the checksum, CRC वगैरह, ये सारे mechanism से कर सकते हैं. Congestion control, जब एरर कंट्रोल नहीं, फ्लो कंट्रोल नहीं है, एरर कंट्रोल इज अप टू सम एक्सटेंट, सब कुछ चेकसम मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है खाली. देन थर्ड कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल भी नहीं है. सिंपल दो तीन वर्ड लिखा हूं मैंने, दो तीन पॉइंट्स. UDP is a connection less protocol, as we know that it does not provide congestion control also. Okay, UDP assume that the packets sent are small.
कि भाई साहब बहुत भोला है, सिंपल ये समझेगा कि भाई मैंने जो पैकेट भेजा हूँ सिंपल है, स्मॉल है, ओके, एंड कैन नॉट क्रिएट कंजेशन इन द नेटवर्क, ये जाके झगड़ा नहीं कर सकते, किसी को मारपीट नहीं कर सकती. दिस इज द assumption of that UDP protocol. And this assumption may or may not be true today when UDP is used for real time transfer like audio and video, and बहुत बड़े बड़े पर्पस के लिए जब यूज किया जा रहा है तो you cannot put this assumption with you regarding the UDP. भाई छोटे पैकेट नहीं, बल्कि सॉरी छोटा डेटाग्राम नहीं बल्कि बड़े बड़े डेटाग्राम भी जा सकते हैं. तो वो चीज़ को हम लोग ज़्यादा, हालांकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं अभी फिलहाल रिसेंट में, जो कि हमारी बुक में एडेड नहीं है, but lot of mechanisms are added in the UDP so that in order to make it more powerful, so that people can use those services of the UDP. बट बोलने के लिए है, अब जहाँ तक थियरी की बात है तो हम लोग इसको ही लेके चलते हैं, दैट इट डज नॉट प्रोवाइड कंजेशन कंट्रोल. योर UDP assume that the packet which are sent to the receiver are simple and cannot create congestion. ओके, बस ये assumption के साथ में चलेगा और आगे जाके फिर तो झगड़ा होने वाला है. इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन जो आपको पता है, ये तो हर जगह पर होता ही है. To send a message from one process to another, UDP protocol encapsulate and decapsulate the message at the sender side and at the receiver side respectively. This is encapsulation, decapsulation. We have already seen, हम लोग ने काफ़ी डायग्राम के थ्रू देखा है, but still this is one diagram I've included in the book so that अगर कहीं याद आ गया तो you can draw it in the examination also. It was a simple sender process. Sender process sent this message in the black you can see, and this message has been added in the UDP data में डाला, UDP header लगाए, then आगे भेजे. यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा पैकेट अभी IP डेटा में आ गया और IP header लग गए. तो ऐसे सब जगह के इनकैप्सुलेशन होते जाएंगे हर एक लेयर पे. देन क्यूइंग के बारे में भी आपको पता है, the buffer which are maintained in order to keep the packet or datagram for waiting purpose, so that because the sender is currently processing one packet, and it does not have any, it is not in the situation that it will handle you. Okay, so it will maintain a queue and they will keep all those incoming packets in this particular queue. So we have talked about this port without discussing the actual implementation of it. In UDP, queues are associated with the port. Somewhere what happened, only one queue is maintained, and at some processes it maintain two queue, for incoming, for outgoing, दोनों के लिए कोई use करता है. At the client side, when a process start, just बहुत ध्यान से ये statement सुनना, ठीक है, इतना ही statement. At the client side, जो भी हो, इधर वाला जो भी है. At a client side, when a process start, आपने Mozilla Firefox में क्लिक किए, Mozilla Firefox ने पीछे एक process start किया. At a client side, when the process start, it requests a port number from the operating system. ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला. जब भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो वो एप्लीकेशन अपने पीछे एक प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है, और जब वो प्रोसेस क्रिएट होके जब एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो वो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पोर्ट नंबर का डिमांड करता है. क्यों? क्योंकि उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होना है, ये पोर्ट नंबर के थ्रू वो अपनी सर्विसेज दे सकता है, ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने Mozilla Firefox ओपन की, Mozilla Firefox ने पीछे एक प्रोसेस ओपन किया, प्रोसेस ABC नाम का प्रोसेस, ओके. तो Mozilla Firefox ने एक प्रोसेस पीछे ओपन किया जिसका नाम था ABC. अब ABC ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिमांड किया कि भाई मुझे एक पोर्ट नंबर असाइन करो, क्योंकि मुझे इंटरनेट यूज़ करना है. इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में तो नहीं है, इंटरनेट तो बाहर से ही आएगा, तो बाहर से लेने के लिए मुझे उसके लिए कोई होल करना पड़ेगा ना, मुझे वो सब लेने के लिए, तो मुझे एक पोर्ट नंबर चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पोर्ट नंबर असाइन करेगा. अब जब देखेगा कि ये तो भाई अपना इंटरनेट सर्विस वाला पोर्ट नंबर, मतलब इंटरनेट सर्विस मांग रहा है, ये तो Mozilla Firefox है जो कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, तो वो सिंपली कौन सा पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेगा उसको. HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज़ होता है, तो उसको पोर्ट नंबर 80 प्रोवाइड किया. तो पोर्ट नंबर 80 उसको प्रोवाइड होगा और पोर्ट नंबर 80 के थ्रू वो सारा इंटरनेट एक्सेस करेगा. अपने पैकेट्स इनकमिंग आउटगोइंग सारा का सारा पोर्ट नंबर 80 से होगा, ठीक है. तो ये आपका तो वेल नोन पोर्ट असाइन हो गया उसको, ठीक है. तो ये एक ऐसे पोर्ट नंबर असाइन होता है.
Some implementation, read the last statement, some implementation create both an incoming and outgoing, वही चीज की बात कर रहा था मैं. Some implementation creates both an incoming and outgoing queue associated with each process. किसी किसी प्रोसेस को एक ही इसमें काम हो जाता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है. और कहीं कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि इनकमिंग के लिए अलग, आउटगोइंग के लिए अलग. तो जो पैकेट उस प्रोसेस से जाएंगे वो अलग क्यू से जाएंगे, वो अलग पोर्ट नंबर से जाएंगे, और आने वाले अलग पोर्ट नंबर से आएंगे. तो होता है किसी किसी में. So queuing is also one of the service provided by the UDP. As you can see in the diagram, diagram याद रखा करो, these all are the imaginary diagram. जिस लिखने वाले ने ये बुक लिखा होगा उसको भी डायग्राम कहीं से आया नहीं होगा, बट उसने सोचा कि हाँ एक प्रोसेस के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग दो क्यू हो सकते हैं, और उसको फिर दूसरे मशीन पर जाएंगे. यू कैन सी वही है, ये आपका ये क्लाइंट है, मतलब ये आपका सेंटर है फॉर एग्जांपल, और ये आपका प्रोसेस. ओके ठीक है. तो प्रोसेस इज हैविंग आउटगोइंग क्यू आल्सो एंड इनकमिंग क्यू आल्सो. सो all the incoming datagram, all the incoming datagram will be received with the help of this port number. तो पोर्ट नंबर डिफरेंट, मतलब पोर्ट नंबर सेम है यहाँ पर, और खाली उनके दो अलग अलग मतलब के क्यूज मेंटेन किया गया. सो पोर्ट नंबर 13 के इनकमिंग क्यू पे आएंगे, यहाँ पर आके वो रिसीव करेगा, और जो पैकेट जाएंगे यहाँ से वो आउटगोइंग क्यू से जाएंगे, दैट इज ऑन द पोर्ट नंबर 18 दैट 13 दैट इज सीव्ड. तो इस तरह का एक इमेजिनरी डायग्राम आप लोग बना सकते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्यू. देन मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, मोस्ट कॉमन थिंग जो हम लोगों ने देखा पहले भी. मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. डायग्राम सेम डायग्राम जो वहाँ पर था वो डायग्राम कॉपीड है. ओके. So these were the miscellaneous services provided, or we can say services provided by the UDP, that is User Datagram Protocol. Just let me summarize the thing what we have done. We have just seen the position of UDP in the TCP/IP protocol suite and the transport layer it is present, and then afterward we came to know about the process to process communication. There is no flow control, there is no error control, there is no congestion control. Okay. Then if it is having, if it having lot of disadvantages, then why we are using it. Then for small purposes, in short, the crux of this whole slide is that for the small purposes we can use this UDP, where the traffic is less, where the number of clients, number of users are less, so we at that place we can easily use the UDP. This is the datagram format. Okay, UDP datagram, which consists of the header and the data, and header consists of source port number, destination port number, total length and checksum. तो ये सबका कॉम्बिनेशन हेडर होता है, जो कि आपका 32 बिट्स का होता है, जिसमें आपका सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16 बिट, टोटल लेंथ को 16 बिट असाइन किया है, चेकसम को 16 बिट असाइन किया है, अलग अलग सेक्शन में. और उसके बाद में फिर ये दीज आर दी वेल नोन पोर्ट विच आर अवेलेबल फॉर द यूडीपी, स्टार्टिंग विद द यूडीपी सर्विसेज 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, टोटल 8 सर्विसेज उन्होंने मेंशन किए हैं. सो इफ यू विल बी आस्क्ड फॉर द टीसीपी एंड यूडीपी, देन you can easily write down the 8 services for UDP. Okay. Same for TCP also. Objective TCP services, around 5 services mention किया हूँ मैंने. Process to process communication will be same, because कि ये वाली जो सर्विस है it is it has inherited from the transport layer. तो process to process communication same है. स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, आपका TCP स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको. फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड. तो ये 5 तरह की सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करता है. ये कैसे बफर्स को मेंटेन कैसे करता है, कैसे सेंड करता है, तो वो सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे. बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है. TCP फीचर्स, नंबरिंग सिस्टम, इट प्रोवाइड नंबरिंग सिस्टम ऑल्सो, बाइट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखे, यहाँ पर भी वापस आया है. फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, ये सब प्रोवाइड करता है. ओके. सो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो. ठीक है. और ये चैप्टर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, इतना ही देखेंगे, एंड देन क्विकली विल मूव. I think from next to next session we will move to the next topic, sorry, next chapter, that is application layer. Okay. Thank you so much. First let me